Buddy, today we are going to start Last Leaf. This is the chapter of moments, seventh chapter, and in this chapter we will be talking about two young artists and Sue's this passion and courage, determination to make well Chauncey. So let's read. Before we read it is autumn. It was autumn and the wind was blowing very hard. It is raining heavily. All the leaves on an ivy tree had fallen except one. इतनी तेज बारिश हो रही थी कि आइवी क्रीपर की सारी लीव्स नीचे गिर गई, बट एक रह गई. वो एक क्यों रह गई, क्या रीज़न था, कैसे रह गई और कब रह गई, ये हम अभी पढ़ेंगे. पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन होगी. नाउ Sue and Johnsy, as I told you, they were the two young artists and they shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. It was a very old house. These two were friends. And it was the month of November. So Johnsy fell seriously ill and she had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Why she was gazing out of the window? She was gazing out as she was counting the ivy creeper leaves as they were falling one by one, one by one. She was counting them. Why? Let's read. Then, when she was gazing out the window, Sue was her friend. So Sue asked, Sue knew that she is counting the leaves, but she won't ask Johnsy in that point of time that why are you counting the leaves and don't count them just why. So Sue was very worried. She sent for the doctor also. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. So sad. वो डॉक्टर हमेशा आता था लेकिन कोई चेंज था ही नहीं जॉन्सी की कंडीशन में. क्यों? क्योंकि अब डॉक्टर ने भी एक सवाल पूछ ही लिया, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, कि जॉन्सी को कुछ वरी कर रहा है, जॉन्सी किसी चीज़ से वरिड है, कुछ घबरा गई है. तो सू ने बोला नो, बट व्हाई डू यू आस्क. तो इसका रीज़न, इसका साइंटिफिक रीज़न, मेंटली रीज़न क्या था कि डॉक्टर सेड दैट जॉन्सी it seems has made her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. Johnsy, it seems, what was the doctor's reply? He said that Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her. This was Johnsy's self-determination. जॉन्सी को पता था कि उसको कोई दवाइयाँ नहीं करी और उसका कोई ऐसा माइंड भी नहीं था कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ठीक तो होके ही रहूँगी. सू मेरे लिए कितनी प्रेस कर रही है, मेरे वजह से वो वरिड है, पता नहीं क्या हो गया. लेकिन नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं कर रही थी. तो ये कैसी फ्रेंड है. Sue tried her best to make Johnsy take an interest in the things around her, but Johnsy continued to lie still on her bed. What were the trying best ideas of Sue? She talked about the clothes, fashion, then drawing board and everything else which Johnsy likes. But there was not respond from Johnsy. Sue brought her drawing board into the Johnsy's room and started painting too. Sue ने सोचा कि that they both were artists. So Sue thought that if she would bring that drawing board, that painting board, so canvas, so she think that Johnsy could change his mind and she would be like, I am an artist, I would make drawings and sell in the market and earn money for their old house. So ऐसी कोई ऐसी कोई इमेजिनेशन, ऐसा कुछ विल पावर जॉन्सी ने नहीं किया. जॉन्सी का तब भी माइंड ऑफ था, वो इल थी एंड शी विसल्ड
working. कौन? The Sue, her friend, whistled while working to take Johnson's mind off her illness. बट जॉन्सी का कोई रिप्लाई नहीं था. जॉन्सी कुछ नहीं चाहती थी. फिर बाद में उसने देखा कि सू भी कुछ विस्पर कर रही थी. मतलब वो कुछ साउंड नहीं निकाल रही थी, विस्लिंग नहीं कर रही थी, वो कुछ विस्पर कर रही थी. क्या कर रही थी वो जब गई तो उसने देखा कि जॉन्सी बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी. दैट मीन्स लाइक 2010 20 19 18 17 ऐसी काउंटिंग कर रही थी. वाई? बिकॉज शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12, then 11, 10, 9, 8, 7. अब Sue anxiously looked out the window. Then क्या देखा उसने? She saw an old ivy creeper climbing halfway up on the brick wall opposite to their window. And the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. And as the creeper was shedding its leaves, the Johnson's counting was reducing. अब आपको पता चला कि वो जो लीव्स फॉल कर रही थी और ये जो जॉन्सी जो विस्पर कर रही थी, उन दोनों का क्या रिलेशन था. देन ये अब सू तो अपना क्वेश्चन पूछती, व्हाट इज दिस डियर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर विस्परिंग. बट जॉन्सी स्टार्टेड विस्परिंग बिकॉज वो आंसर देना चाहती थी. लेकिन जैसे उसने आंसर देना देखा तो उसने देखा एक लीफ गिर गई, उसकी काउंटिंग ना खराब हो जाए. देन शी सेड 6. फिर उसने बोला, they are faster now, they're falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves, there are only 5 leaves left. तो सू ने बोला, हाँ ये ऑटम है, it's autumn and the leaves will fall. फिर जॉन्सी का क्या रिप्लाई हुआ? जॉन्सी ने बोला कि when the last leaf fall I will die. क्या जॉन्सी ये क्या बोल रही थी? उसने बोला कि अगर लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी. इसका क्या मतलब हुआ भाई? अब वो तो अपनी कंट्रोल कर सकती है, अपनी विल पावर से, अपनी डिटर्मिनेशन से कर मतलब वो सोच सकती है कि मुझे ठीक होना है तो वो ठीक हो भी सकती है. लेकिन उसने यही मान लिया था अपने मन में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डॉक्टर ने पूछा था कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी को वारी कर रही है. देन Sue said no, but it was one thing which was worrying Johnsy, the falling leaves. Then हम सब की तरह जो हमारा रिप्लाई अभी आप लोग अपने दिमाग में सोच रहे हो वही सू का रिप्लाई था. Oh, that's nonsense. What have old ivy leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Johnsy didn't say anything. Sue went and brought a bowl of her soup. Or I think that soup would be sweet corn soup. Let's see which soup. What? Johnsy said that I am not hungry. I don't want any soup and just go. Now only 4 leaves are left. And I want to see that the last leaf will fall before it gets dark. Then I will sleep forever. इतनी सेल्फ डिटर्मिनेशन थी इसमें, अच्छी वाली नहीं गंदी वाली. बोलती कि जैसी लास्ट लीफ अंधेरे होने से पहले काश लास्ट लीफ गिर जाए, फिर मैं भी सो जाऊंगी पूरे हमेशा के लिए, मैं भी सो जाऊंगी. अब सू तो उसे बहुत प्यार करती थी और वो बैठी जॉन्सी के साथ एंड शी किस्ड हर एंड सेड, you are not going to die. I can draw the curtains for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend, she begged Johnsy. So उसने बोला, प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, ऐसे कर्टन्स प्लीज़ तुम अपना आईज क्लोज करके सो जाओ. मुझे कर्टन्स ड्रॉ नहीं करने हैं क्योंकि मुझे लाइट चाहिए. और थोड़ा अंधेरा का टाइम था तो उनके पास लाइट का भी अरेंजमेंट नहीं होगा शायद, तो उसको अब लाइट चाहिए थी. और वही उसके लिए ही वो अब उसको पेंटिंग करनी थी. वो एक आर्टिस्ट थी, उसको पेंट करना था, ड्राइंग को सेल करना था. एंड देन शी वुड बाय सम मनी फॉर जॉन्सीज ट्रीटमेंट. प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट.
Chauncey said, "All right, finish your painting soon. I want to see the last leaf fall. I'm tired from waiting. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves." अब सू ने बोला, "Try to sleep. I have to paint an old miner. I will call Burman to be my model." अब यहाँ पे एक और करेक्टर की एड, एक और करेक्टर आया, बर्मैन। बर्मैन कौन था? उनका नौकर, उनका दोस्त या उनका भाई? नो, दे ही वॉज देयर neighbor, and actually he was that they both were living on the third floor. He was living on the ground floor. Why she called only Berman and only? Because Berman was an also an painter. He was 60 years old. He was sorry old. So he was 60 years old painter, and his lifelong dream was to paint a masterpiece, but that remained a dream. अब उसने देखा, बर्मैन को उसने सब बताया कि जॉन्सी क्या बोल रही है, वो किस चीज़ से सफ़र कर रही है। एंड वो ओल्ड मैन भी एक्चुअली निमोनिया से था सफरिंग, वो भी निमोनिया से सफ़र हो रहा था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बताया उसको। वो जॉन्सी की मदद करना चाहता था, क्योंकि जॉन्सी की इतनी बुरी हालत थी कि इस ओल्ड मैन से भी देखा नहीं गया, क्योंकि इस ओल्ड मैन को तो पता था ये मरने वाले, ये ऑलरेडी 60 ईयर्स का हो गया तो मर ही जाएगा। लेकिन जॉन्सी अभी भी यंग थी, वो तो अभी फ्यूचर जनरेशन है हमारी, वो और आगे भी कुछ कर सकती है। तो इसलिए उसने अपना बिना सोचे जॉन्सी के हेल्प के लिए चला गया। लेकिन अब वो क्या करता? अब सू ने बताया कि जॉन्सी वॉज कन्विंसिंग दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। अब बर्मन ने भी क्या कि is she stupid? How can she be so foolish? She is running at a high temperature, and she refuses to eat or drink. That worries me a lot. ये सू ने बोला। Then I will come with you and see Chauncey, बर्मन ने बोला। Then वो दोनों ऐसे दबे पाँव कमरे में गए। उन्होंने जॉन्सी को देखा कि वो सो रही थी, अच्छी बात है। सू ने कर्टन्स को बंद कर दिया, एंड तब सिर्फ एक ही लीफ गिर रही थी, मतलब एक ही लीफ रह गई थी, और वो मतलब हाँ वो गिरने वाली थी, गिरने वाला उसका था ही, गिरने वाली थी वो। तो उसने फिर ये क्या किया, इसने फिर उसके बाद आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी। अब एक ही लीफ रह गई थी पूरे उसमें क्रीपर में, और अब उसको वही था कि अब अगर जॉन्सी ने उसको लास्ट लीफ को देख लिया और वो भी मर गई तो उसने पहले कर्टन्स ड्रॉ करे, सॉरी इट्स कर्टन्स ड्रॉ करे, और इट वाज रेनिंग हेवीली और आइसी कोल्ड विंड जैसी चल रही थी कि उसको लगा कि लास्ट लीफ तो कभी भी गिर सकती है। लेकिन बर्मैन ने कुछ नहीं बोला। बर्मैन अपने वापस कमरे में चला गया। लेकिन क्या बर्मैन सच में अपने कमरे में गया था? लेट्स सी। अब अगले महीने, अभी बीच में स्टोरी रुक गई है और आगे का सस्पेंस बताया है कि जॉन्सी व्हेन woke up next morning in a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was very nervous because Sue को नहीं पता था कि बर्मन क्या करने वाला है, लेकिन बर्मन को तो पता ही था कि वो क्या करने वाला है। Sue was very nervous. She drew back the curtains very reluctantly. मतलब बहुत घबरा के वो बहुत ही घबरा गई थी कि अरे क्या होगा, ये पूरी रात निकल गई, वो तो लीफ तक गिर ही जाएगी। And if you remember, what was the lifelong dream of Berman? It was to paint a masterpiece. So I'm repeating because at last we came to know that how Berman made his last masterpiece and died, but saved Chauncey's life. Oh! Sue exclaimed, and she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. ऐसा कैसे हो गया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जॉन्सी ने भी बोला कि अब सू ने अभी कंटिन्यू किया कि अभी भी वन लीफ रहती है क्रीपर पे, और वो देखो कितनी अच्छी और ग्रीन एंड हेल्दी है ये। इन स्पाइट ऑफ स्टॉर्म एंड द फ्रीज विंड्स इट डिडंट फॉल। फिर जॉन्सी ने बोला, आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। मतलब वो अब वो पहले से ज़्यादा वीक हो गई थी। तो
उसने फिर बोला इट विल श्योर फॉल टुडे देन आई विल डाई, मतलब उसको मरना ही था। सू ने बोला नो यू वोंट डाई, और उसने इतने एनर्जेटिकली बोला, तो यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। जॉन्सी स्माइल्ड Johnsy smiled with weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the last leaf was still there. So she every day walk peeped out the window and see that ये क्या हो रहा है, ये लीफ गिर क्यों नहीं रही है। और अब उसको तो लग रहा था कि कोई नकली क्रीपर तो नहीं है, नहीं। अब इवनिंग में एक और स्टॉर्म आया और उसने देखा कि ये क्या हुआ, देखो सू स्टॉर्म आ रहा है, ये तो पत्ती अब गिर जाएगी, मैं भी सो रही हूँ हमेशा के लिए। फिर बाद में जॉन्सी ने बोला सू ने बोला कि अच्छा देखने तो दो। Then actually nothing happened, as she said that it was a fake leaf and the real leaf had already fallen down. Real leaf जो थी वो already गिर चुकी थी and you were still alive. That means you were just depending upon the last leaf to be died, but the last leaf had already fallen. Which is this leaf? तो इतना अच्छा, इतना real लग रहा था, like a masterpiece. मास्टरपीस, बर्मैन की कुछ बात भी नहीं हुई यहाँ पे, अब होगी। अब जॉन्सी ने बोला कि आई हैव बीन अ वेरी बैड गर्ल, यू हैव सू को बोलती कि यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड हैव रियलाइज दैट इट इज सिन टू वांट टू डाई। सू जॉन्सी को हक करती है और फिर वो कहती है कि लो हॉट सूप पियो और मिरर पे देखो। जॉन्सी अपने बालों को कॉम करती है और बहुत ही अच्छे से ब्राइटली स्माइल करती है, और आफ्टरनून में जब डॉक्टर आता है तो वो बोलता है वाओ जॉन्सी इज लिविंग, शी इज़ वेल, शी हैज़ अ विल टू लिव. I'm confident she will recover soon. Now I must go downstairs and see Berman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no hope for him. अब ये बात तो सू को पता नहीं थी। इतनी ठंड में उसने उसको बुलाया, ओल्ड मैन को 60 years ओल्ड मैन को, और अब उसको तो पता नहीं था कि वो भी निमोनिया से मिला। वो तो अब डॉक्टर ने बताया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सू केम एंड सैट ऑन द जॉन्सीज बेड टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स एट आई। अब जो सू थी उसको पता चल गया पूरी कहानी, ये जो बीच में जो पॉज हो गया था ना, ये यहाँ पे जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। इसके अब यहाँ से इसके पीछे की जो फ्यू मिनट्स लेटर कहानी थी अब वो बता रहे। अब सू को एक्चुअली पता चल गया कि बर्मन जो था वो भी निमोनिया की वजह से ही मर गया है इसी मॉर्निंग, लेकिन वो अभी पिछले 2 दिनों से थोड़ा वीक था और गार्ड को पता था कि वो भी निमोनिया से है, लेकिन निमोनिया से सफ़र हो रहा है, लेकिन उसने ऐसे किसी को बताया नहीं। और गार्ड ने ये भी बताया सू को कि उसके जो बर्मन के जो क्लोथ्स हैं वो जब मर गया था तो उसे जब देखने गया तो उसके क्लोथ शूज सब गीले थे और वो काँप रहा था। देन उसको लगा कि लगता है कि स्टॉर्मी नाइट में बाहर आ गए होंगे। अब स्टॉर्मी नाइट में बाहर आ गया, लास्ट लीफ गिर गई, उसका मास्टरपीस बनाना था, तो कुछ तो रिलेट हुआ ना। तो वो जो लास्ट लीफ थी जो बिल्कुल एक अच्छी, बिल्कुल एक रियल लीफ की तरह दिख रही थी, वो एक्चुअली बर्मन की मास्टरपीस था। And Berman was having a lifelong dream also to paint a masterpiece. Yes, which had remained a dream, but now this dream was fulfilled. Then they found what? They found ladder, a lantern, and it was also lighten था वो अभी भी। उसने कुछ ब्रशेस देखे, ग्रीन एंड येलो कलर देखा, एंड कुछ पेन देखा जो फ्लोर पे गिरा हुआ था, लैडर के पास थी। अब जॉन्सी
अब जॉन्सी को अब सू ने जॉन्सी को बोला, जॉन्सी डियर, लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक at that ivy leaf. Have you ever wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Berman masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. Wow. And the janitor is actually the guard. I have also said that word guard. Janitor is guard or watchman or a person whose job is to look after a building. This story was written by O. Henry, and I hope it was a very good story and a motivational story. Till then, bye.